हेलो स्टूडेंट्स हमने बायो का जो चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, राइट। हमने ये जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसमें जो टॉपिक्स कवर करे हैं अभी तक वो है हमारे पास जनरल जो टॉपिक ख़त्म करा था हमने लास्ट टाइम, दैट इज़ द जनरल स्टेप्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इन डिटेलिंग। So our next topic is autotrophic mode of nutrition। तो न्यूट्रिशन की मोड्स को अब डिस्कस करेंगे। तो हम कौन से मोड की बात कर रहे हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। वी नो दैट प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल इन देम एंड दैट क्लोरोफिल जो है दैट है वो हेल्प करेगी सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करने में। क्लियर? अब सबसे पहली चीज़, क्या प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए? यस, इवन प्लांट्स दे नीड एनर्जी। इवन प्लांट्स नीड एनर्जी बिकॉज दे even have to do their work, because they even have to maintain their life processes. So they need energy to keep life processes continue. So life processes को कंटिन्यू करने के लिए क्या चाहिए? दैट इज़ एनर्जी चाहिए। क्लियर? और ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स कैसे एनर्जी बनाते हैं? दे यूज़ वॉट? यस, दे यूज़ CO2, दे यूज़ वाटर, बट रिमेंबर they require these things and they will only convert them into carbohydrates in the presence of sunlight and even that is chlorophyll. Students, chlorophyll is a green pigment that helps to trap the solar energy, right? So finally they use CO2 and water, and by which they convert them into carbohydrates. Clear? So what they will require to form their energy? Yes, they'll require CO2, water, sunlight and chlorophyll. Clear? So they will require these things to make carbohydrates. Clear? So we can say carbohydrates, they provide energy. They provide energy to the plant. Clear? और ये जो carbohydrates होते हैं ना, they are stored in the leaves in the form of starch. Students, very very important question. Carbohydrates are stored, excess of carbohydrates, they are stored in the form of starch in the leaves. So we can call कि जो starch होता है ना, that's the internal energy reserve. So starch is internal energy reserve. So जब कभी भी प्लांट को ज़रूरत होगी, that can use starch. It can oxidize starch to release energy, right? So that internal energy reserve का काम करेगा कौन? starch. अगर ह्यूमन बीइंग में पूछा जाए तो हमारा इंटरनल एनर्जी रिजर्व कौन होता है? ग्लाइकोजन, राइट? लेकिन अभी हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर? स्टूडेंट्स, जो फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो एक्चुअली उसमें होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में जो सोलर एनर्जी है, मैं आपको पहले भी बताया है दैट सोलर एनर्जी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, yes, it is converted into chemical energy, and that chemical energy is ATP and NADPH. What is this NADPH and ATP? Beta, ATP is known as energy currency of the cell. What it is known as? Energy currency of the cell, and its full name, इसको expand करें तो adenosine triphosphate. Whereas NADPH की full form निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, निकोटीन
amide, adenine, dinucleotide, phosphate. So these are basically chemical energies. तो जो सोलर एनर्जी होगी राइट, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. तो जो फोटोसिंथेसिस है वैसे वो कहाँ पे होती है बेटा, द प्लेस वेयर फोटोसिंथेसिस अकर इन द लीव्स और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, राइट. photosynthesis that occur in the leaves or the green parts of the plant, basically जो leaves होते हैं उनके कुछ specialized cells होते हैं. Leaves have specialized cells and that specialized cells are known as mesophyll, right. So photosynthesis occur in specialized cells of the leaves and that is known as mesophyll. Clear. और मीजोफिल में ऐसा क्या होता है, मीजोफिल में प्रेजेंट होती है क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज अ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनेली, राइट. दिस ऑर्गेनेली contains chlorophyll and that chlorophyll helps to convert solar energy into chemical energy. Clear. तो अगर मैं इसके रिएक्शन को नोट करूं पहले, तो रिएक्शन से भी पहले हम इसके डायग्राम देखते हैं पहले कि मेसोफिल सेल्स कैसे होते हैं. या अगर मैं टीएस ड्रॉ करूं एक लीफ का तो इट विल बी लाइक दिस. सी, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लीफ इज नोन एज एपिडर्मिस. और एपिडर्मिस के ऊपर क्या है, ये जो मैंने लेयर बनाई है दैट इज नोन एज क्यूटिकल, राइट. और ये जो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ ऑफ दिस स्टोमेटा, राइट. तो ये है हमारे पास क्यूटिकल. क्यूटिकल प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. एपिडर्मिस इज बेसिकली फॉर द प्रोटेक्शन, राइट. और इसके बाद आती है मीजोफिल की बारी. सी, मीजोफिल. मीजोफिल की सेल्स के डायग्राम, राइट. तो ये इसके बीच में मैं ये जो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रही हूँ ये है क्लोरोप्लास्ट, राइट. क्लोरोप्लास्ट. और इसके नीचे वाले सेल्स देखो मैंने कैसे ड्रॉ करे हैं, थोड़े से इसमें एयर स्पेसेस भी हैं, राइट. इनके बीच में भी क्या है, क्लोरोप्लास्ट. तो ये जो पोर्शन है दिस वन, दिस इज नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा. व्हाट इट इज नोन एज पैलिसेड पैरेन्काइमा. एंड व्हाट इज दिस ये वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी कंप्लीट, दिस इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. व्हाट इट इज नोन एज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा टुगेदर नोन एज, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, मीजोफिल. एंड मीजोफिल कंटेन्स व्हाट, मीजोफिल कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, राइट. क्लियर. तो ये था हमारे पास जो है ये टीएस, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ लीफ, जिसमें क्या शो करा है, सिर्फ मैंने एपिडर्मिस, स्टोमेटा, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. मैंने इसमें जाइलम फ्लोएम के बंडल्स अभी नहीं दिखाए हैं. तो अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ तो फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है दैट वुड बी लाइक दिस. CO2 plus water and this will give C6H12O6 plus O2. तो इसको बैलेंस कर लेते हैं हम. 6 CO2 एंड 12 वाटर लेते हैं. फूड दिस 6 O2 प्लस 6 वाटर. बट रिमेंबर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. मैंने क्लोरोफिल की शॉर्ट फॉर्म डाली है, क्लोरोफिल.
राइट। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, जो अल्टीमेटली फोटोनिक एनर्जी मतलब लाइट की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी स्टूडेंट्स? यस, इन द केमिकल एनर्जी, दैट इज द एनर्जी इज logged in the energy bonds of the carbohydrates. So energy is logged in the energy bonds of carbohydrates. Clear? तो ये था हमारे पास बिल्कुल जनरल डिस्कशन कि व्हाट इज़ एन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो इसमें क्वेश्चंस बनते हैं. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. विच इज़ द इंटरनल एनर्जी सोर्स रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट्स? इट इज़ स्टार्च. And label the things that is shown in the TS of the leaf. Very very important, right? अब हम डिस्कस करेंगे the steps involved in the photosynthesis. Steps involved in photosynthesis. तो कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस में होते हैं? तो जो फर्स्ट स्टेप है that is the absorption. First step is the absorption of solar energy. Solar energy absorb मतलब लाइट एनर्जी किस में कौन absorb करता है? मैंने पहले भी बताया था. फर्स्ट स्टेप इज द लाइट एनर्जी इज absorbed by the chlorophyll molecules, right? तो सेकेंड स्टेप, अब लाइट एनर्जी तो अब्जॉर्ब होगी, अब लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? इनटू केमिकल एनर्जी. सो सेकेंड स्टेप इज अ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. और इसी के साथ ही स्प्लिटिंग मतलब ब्रेकिंग, right? Splitting up of the water molecules. Splitting up of water molecules. तो water molecules जो use होंगे in the reaction of the photosynthesis, it must be split up. So see, अगर मैं ये water molecules 2 ले लूँ तो it will be split up into C 4H positive, C4 hydrogen, right? Plus O2 and 4 electrons release होंगे. So ultimately जो water molecule है that splits up into hydrogen, oxygen and electrons. And now the third step. अब देखो, अभी तक हमने वाटर को तो यूज़ कर लिया, हमने सोलर एनर्जी भी यूज़ कर ली, लेकिन अभी तक CO2 का रोल कहीं नहीं आया, राइट? और जो लास्ट स्टेप होगा दैट इज़ अ reduction of CO2. Students, what is reduction? Reduction is the addition of hydrogen. So reduction of CO2, अगर CO2 रिड्यूस होगी, सोचो C भी है O भी है, अगर H आ जाए तो it will form carbohydrates. We know that carbohydrate is C6H12 and O6, right? So it will produce carbohydrate, राइट? अब ये कार्बोहाइड्रेट बनेगा कैसे? बाय यूटिलाइजिंग द केमिकल एनर्जी, दैट इज ATP एंड NADPH. वो हम बाद में बात करेंगे अभी. सो कार्बोहाइड्रेट बाय यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी. स्टूडेंट्स, एक आपको बात माइंड में रखनी है कि आपको ये स्टेप्स जो हैं वो लाइन वाइज लिखने होंगे. सबसे पहले बेटा सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, फिर लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, तभी तो केमिकल एनर्जी यूज़ होएगी. क्या बनाने में? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में. तो हम इन स्टेप्स को अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख सकते हैं, राइट? और अभी कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी कि बेटा व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. बेटा ऑर्गेनिक चीज़ क्या होती है? इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों हों. तो अगर CO2 में सिर्फ C और O2 था, अगर इसकी रिडक्शन हो जाए CO2 की, मतलब एडिशन किसकी हो जाए? हाइड्रोजन की, तो वो अब क्या बन जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज C6H12 एंड O6.
क्लियर? तो ये थे हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है? अभी तो हमने बताया था मेसोफिल में. मेसोफिल में कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में. मेसोफिल होती किस में है? लीव्स में. राइट? तो हम डिस्कस करेंगे अब टॉपिक अपना नेक्स्ट, दैट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट? तो फोटोसिंथेसिस अभी मैंने बताया था दैट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट of the cell. क्लियर? और क्लोरोप्लास्ट किस कहाँ में प्रेजेंट होती है? क्लोरोप्लास्ट इट अकर इन द मेसोफिल of the leaves. So chloroplast it occur in the mesophil of the leaves. बेटा अभी मैंने पीछे आपको मेसोफिल की डायग्राम बताई थी. मेसोफिल इंक्लूड 2 types of parenchyma, palisade parenchyma and spongy parenchyma, right? And chloroplast is the largest cell organelle in the plant cell, right? तो यहाँ पे हम वैक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, वैसे मतलब जो मेजर काम करने वाली ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी बात कर रहे हैं. क्लोरोप्लास्ट इज एक्चुअली द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली. क्लियर? और जो मेसोफिल सेल्स होते हैं बेटा उनमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती हैं. सो मेसोफिल सेल्स दे कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. अगर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे तो ऑब्वियसली फूड भी बहुत ज़्यादा बनेगा. राइट? तो है क्या? क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली एक ग्रीन कलर की प्लास्टिड होती है. सो इट्स अ क्लोरोप्लास्ट इज अ ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड. प्लास्टिड्स की आपने टाइप्स पढ़ी होंगी स्टूडेंट्स 9th क्लास में. ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. वाइट कलर की प्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड्स होती हैं. राइट? रेड, ऑरेंज, ब्राउन. वेयर एज अभी हम बात करें ग्रीन कलर की प्लास्टिड की, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. राइट? अब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि क्लोरोप्लास्ट कैसी स्ट्रक्चर होती है. तो हम स्ट्रक्चर के थ्रू ही इसको पढ़ेंगे. अब सी क्लोरोप्लास्ट इट्स अ डबल membrane bound organelle. It's a double membrane. तो दो membranes हैं. So this one is the outer membrane and this one is the inner membrane. So दो membranes, outer membrane and inner membrane. और जो दो membranes के बीच में ये आप space देख रहे हो ना, ये वाली, this space is known as periplastidial space. Clear? तो जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज़ अ डबल membrane बाउंड ऑर्गेनेली. और इनसाइड द membrane क्या प्रेजेंट है सेंटर में? दैट इज़ फिल्ड विद मैट्रिक्स और स्ट्रोमा. मैट्रिक्स इज बेसिकली, स्ट्रोमा इज बेसिकली द ग्राउंड सब्सटेंस. सो हियर इज अ मैट्रिक्स और द stroma. So this is a stroma or the matrix. और मैट्रिक्स के अंदर में क्या नजर आते हैं? फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक. सी, फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक. And this flat membranal sac, singular, it is known as thylakoid. And the group of the thylakoids is known as granum. Granum. Right? So जो thylakoids हैं आप देख रहे हो, how they are arranged? They are arranged in stacks, that is one above the other. See? One above the other. एक के ऊपर एक. पाइलअप हुए हैं, जैसे क्वाइंस को हम पाइलअप कर दे वन अबव द अदर. सो पाइलअप, ये ग्रुपिंग, यू आर इन द स्टैक्स ऑफ, व्हेन दे आर अरेंज्ड इन द स्टैक्स, देन इट इज नोन एज ग्रैनम. सिंगुलर इज ग्रैनम, प्लूरल इज ग्रैना.
राइट। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये जो ग्रैना हैं they are connected, even they are connected by flat membranous tubes या tubules, they are known as stromal lamellae. see, ये जो मैं अभी ब्लैक कलर के ड्रॉ करूँगी, they are connected, they are connected via what, this one is stromal lamellae. We can also call it as intergranal thylakoid. See, between the two grana, ये जो thylakoid है, right? So इसी का ये एक और नाम intergranal thylakoid, right? तो ये है stromal lamellae और intergranal thylakoids. अब थैलाकॉइड्स किस चीज़ के बने होते हैं बेटा? थैलाकॉइड्स बने होते हैं क्वांटोसोम्स के। थैलाकॉइड्स आर मेड अप ऑफ क्वांटोसोम्स। तो थैलाकॉइड में है क्या, मैं यहीं पे नोट कर रही हूँ। थैलाकॉइड्स दे कंसिस्ट ऑफ क्वांटोसोम्स। नाउ द क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वांटोसोम? बेटा जो क्वांटोसोम है दैट्स अ फंक्शनल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो इट्स अ फंक्शनल unit of photosynthesis, right? क्वांटोसोम, अब क्वांटोसोम्स में है क्या चीज़ बेटा? क्वांटोसोम कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ ग्रुपिंग ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। सो क्वांटोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, बेटा मैं क्लोरोफिल को CHL डाल दूँ शॉर्ट फॉर्म, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D एंड क्लोरोफिल E। तो थैलाकॉइड्स में क्वांटोसोम्स में क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो आपको अगर कोई पूछे कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो द आंसर वुड बी यस, थैलाकॉइड्स और ग्रैना, राइट। और जितनी भी अभी हमने क्लोरोफिल की टाइप्स लिखी हैं, आउट ऑफ ऑल दीज क्लोरोफिल जो A होती है ना, दैट्स अ यूनिवर्सल पिगमेंट। मतलब ये सभी प्लांट्स में मिलती है, जो भी फोटोसिंथेसिस शो करते हैं ना, ये यूनिवर्सल पिगमेंट होती हैं। तो बाकी क्या हैं? दे आर असेसरी पिगमेंट्स। तो जो अदर्स हैं दे आर द असेसरी पिगमेंट्स। तो थैलाकॉइड्स में तो हमें पता चल गया कि उसमें पिगमेंट्स हैं, लेकिन स्ट्रोमा में क्या चीज़ है बेटा? स्ट्रोमा में पड़े होते हैं एंजाइम्स। स्ट्रोमा मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ये जो मैं डार्क रेड स्ट्रक्चर्स बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ इसके एंजाइम्स। स्ट्रोमा में क्या पड़े हैं? एंजाइम्स। तो थोड़ा हिंट मिल गया होगा आपको कि जो लाइट रिएक्शन है वो तो होएगी थैलाकॉइड्स में, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अच्छा, और क्या पड़ा होता है स्ट्रोमा में? देखो ये स्ट्रोमा में मैंने बना दिया, ये देखो, राइट। ये क्या बनाया मैंने स्ट्रोमा में? इसका DNA। सो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA होता है इसमें। मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA कैसा होता है। सी, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA वुड बी लाइक दिस। डबल स्ट्रैंडेड लेकिन सर्कुलर DNA कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के पास खुद के अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। स्टूडेंट, राइबोसोम्स को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्रीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन्स बनाने में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। सो राइबोसोम्स, DNA है इसके पास, एंजाइम्स हैं बीच में, और क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसमें उसका खुद का DNA है, खुद के राइबोसोम्स हैं। सो इट इज़ नोन एज
जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ सेमी ऑटोनॉमस, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, क्योंकि ये अपने बहुत सारे प्रोटीन्स तो खुद बना लेती है, बट स्टिल इसको अपने कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए सेल पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, तभी इसको कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस, राइट? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है और खुद के ही राइबोसोम्स हैं। क्लियर? तो हम बात करते भी स्ट्रोमा की, तो स्ट्रोमा में क्या कुछ है? स्ट्रोमा में बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा स्ट्रोमा में पड़ा है राइबोसोम्स और एंजाइम्स, और वो एंजाइम्स जो होते हैं ना, दैट हेल्प इन डार्क रिएक्शन, सो दे आर द वन विच कैन कन्वर्ट CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स में भी। सो स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन चलनी है? डार्क रिएक्शन, वेरी गुड, राइट? डार्क रिएक्शन में क्या बनेंगे हमारे पास? कार्बोहाइड्रेट्स। और मैंने आपको थर्ड स्टेप में बताया था, थर्ड स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस, दैट रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बन जाएंगे वाया डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल, आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन, जिसने ये साइकिल को डिस्कवर करा था। दैट स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट्स की प्रोडक्शन होगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, यानी कि जो डार्क रिएक्शन है दैट इज़ एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड। जो डार्क रिएक्शन है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, एंड वी नो दैट एंजाइम्स दे आर वेरी पर्टिकुलर for the temperature, for the pH, they are very particular, right? They require a proper pH and proper temperature. So this was about the structure of chloroplast. So students, हमने अपनी इस वीडियो में आज डिस्कस करा है एक तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एक हमने द स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, और द जनरल ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Okay, so bye bye.